Just a minute. I hope the screen is visible to you all. So these are the kind of questions you'll be getting in the exam. So one blank is given and some 5 options are given to you. So this is the approach that we are suggesting. There are 2 approaches which you can go for whenever you are coming across text completion question. The first approach is a 3-step approach in which you should try to identify target. Target is basically what your blank is talking about. आपका blank किस बारे में बात कर रहा है, that becomes your target. What is being talked about that target becomes your clue, and then there are set of pivots in every sentence. Pivots क्या होते हैं? जैसे आपको पता होगा कि despite अगर हम किसी sentence में use करते हैं तो usually उसमें एक contrast लाने की कोशिश करते हैं, right? Despite the circumstances or despite the hardship, he was able to succeed in his endeavor. So although we started the word, हम लोगों ने despite और hardship से चालू किया, लेकिन हम लोगों ने word आगे कैसा choose किया है? He succeeded. Why we have done it? हमने hardship का opposite word उठाया है, क्योंकि वहाँ पे pivot आपके पास despite था with signals कि आपको कोई opposite meaning create करना चाहिए. इसको हम एक sentence में apply करके भी देख लेंगे जिससे आपको ज़्यादा clarity हो जाएगी. तो एक तो ये 3-step approach आप follow कर सकते हैं, that every time try to see what blank is talking about, वो आपका target क्या है, ठीक है? उसके लिए आपको clues क्या दिए हुए हैं, and based on that clue and pivots, what kind of words you should be going for. Then there's an alternative approach. If you don't want to go with this 3-step approach, there's an alternative approach which says that you should try to understand the tone of the sentence. Try to see if the sentence is trying to appreciate something or is it trying to criticize something. किसी के बारे में कुछ अच्छा बोला जा रहा है या बुरा बोला जा रहा है. अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे भी सेंटेंसेस को तोड़ के बहुत इजीली अपने ऑप्शंस पे पहुंच सकते हैं. एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट ब्लैंक पे वो किसी की बुराई कर रहे हैं, सो आपको ऑप्शंस में क्या पकड़ना है? वो सारे वर्ड जो बुराई के काम आ रहे हैं या जो नेगेटिव कनोटेशन के साथ आते हैं. Similarly, if you are seeing that within the blank they are talking something positive, then within the options you have to categorize all the options that can come in the positive category. So we'll apply these concepts to the question and see how it actually works. So let's look at our first question. The mayor was forced to dash the demands of the organization since its members comprised a significant minority of her electorate. So let's try to use the first strategy, the 3-step approach. So what is our target? Blank किसके बारे में यहाँ बात कर रहा है? Blank is talking about mayor, right? अब mayor के बारे में जो बोला जा रहा है उसमें हमें clue क्या है? Mayor के बारे में clue क्या है? That उसके सामने कोई demand रखी गई है, right? And from a significant minority of her electorate. So that means this minority matters to him, right? And forced is a clue. If you can see within the sentence, forced word है. तो अगर forced word use किया हुआ है, which is a clue, तो forced के आगे उसने इसको happily agree किया होगा कि not happily agree किया होगा. Akshat says not happily. What about others? क्योंकि forced अपने आप में एक negative आपको option दे रहा है, right? कि if they've used word forced, which means कि उसकी इच्छा तो नहीं थी पर उसे करना पड़ा है. Why? Because ये जो minority है उसके electorate में, उसकी जहाँ पे भी constituency है, ये उसके significant chunk हैं, उसके voters हैं. That's why he was forced to give up on the demands of something, right? We are looking for a word which is reluctantly कर रहे हैं समृद्धि, right? Not happily. अब ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आप कोशिश करके देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं. बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग तो आपको पता होंगे, ठीक है? एक्विसीज क्या होता है? व्हाट इज एक्विज? एक्विज टू एक्सेप्ट समथिंग, राइट अशिता? टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एग्री विद समथिंग, राइट? हाँ, एक्सेप्ट करना पर रिलेक्टेंटली करना, ठीक है? कंसिडर वर्ड हम तब कर लेते जब फोर्स्ड वाला ऑप्शन नहीं होता, राइट? अगर हमारा क्लू यहाँ फोर्स नहीं होता और मेयर अपनी विलिंगली ये चीज करने वाला होता डिमांड्स के साथ, तो वी वुड हैव गॉन विद अ पॉजिटिव ऑप्शन व्हिच इज कंसिडरिंग, राइट? दैट ही इज कंसिडरिंग द डिमांड्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट ही, बिकॉज ही हैज बीन फोर्स्ड टू डू समथिंग, so an action has taken place and that action shows some kind of reluctance. So a good option for that could be acquiesce, right? Repudiate is to deny.
राइट. अंडरमाइन कर देना भी किसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर देना या वीकन कर देना हो जाता है, which will not go well in the context. So looking at the context, अपन ने देखा कि मेयर was a target जिसके बारे में forced word यूज हो रहा था. Accordingly हम लोगों ने अपने options को categorize किया within positive and negative, and we tried to come up with option A, which shows that agreeing to something but reluctantly. Let's look at one more sample question to apply the concept. Look at this one. I made it to full screen. I think you guys can see it, right? Now this sentence, within this, despite an abundance of evidence supporting the alternative hypothesis, the archaeologist remained dash other possibilities. So our target is archaeologist, right? And what is the clue we have? That archaeologist had abundance of evidence supporting an alternative hypothesis. जो उनकी hypothesis है उसके अलावा एक alternative hypothesis exist करती है जिसके लिए उनके पास abundant evidence है. Good amount of evidence are available for an alternative hypothesis, but here the pivot they are using is despite. तो अगर alternative hypothesis होने के बावजूद और उसके sufficient evidence होने के बावजूद आर्कियोलॉजिस्ट अदर पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे, आपको ऐसा कॉल ले लेना चाहिए पहले. इवन बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस, दिस इज द कॉल यू शुड बी कीपिंग कि दे शुड बी ओपन फॉर अदर पॉसिबिलिटीज. समृद्धि सेज दैट दे शुड बी ओपन फॉर द पॉसिबिलिटीज. And why do you think so, Samriddhi and Akshat, that they should be open? Diya says cognizant should be the answer. Cognizant is to be aware of. डिस्पाइट तो यूज है, डिस्पाइट से क्या कंटेक्स्ट क्रिएट हो रहा है? देखो सारा खेल यही समझने का है कि ओपन आना चाहिए कि क्लोज आना चाहिए. दे वर ओपन टू अदर पॉसिबिलिटीज और दे वर क्लोज टू अदर पॉसिबिलिटीज. वापस से उसको मीनिंग को कंटेक्स्ट को ब्रेक करने की कोशिश करो. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. सी द ऑप्शंस आर प्रीटी सिंपल, राइट? नन ऑफ द वर्ड्स ऐसे कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है कॉग्निजेंट को छोड़ के, जो आपने डेली लाइफ में नहीं सुने होंगे. कॉग्निजेंट इज जस्ट टू बी अवेयर ऑफ समथिंग. To have knowledge and to be aware of something is cognizant, right? तो यहाँ पे सारा बाहर आ जाता है कंटेक्स्ट समझने का. सो कंटेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि abundance of evidence सपोर्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, लेकिन उन्होंने डिस्पाइट लगा दिया है. तो आर्कियोलॉजिस्ट इतने abundant of evidence होने के बावजूद ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? दे शुड बी क्लोज दिया, राइट? इसको सेंटेंस को जब आपको लगे कि सेंटेंस थोड़ा सा कम्बरसम हो रहा है तो लेट्स मेक इट स्मॉल. आई विल पुट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस. और वही चीज आपको मीनिंग समझने में भी कर लेना चाहिए, दैट यू कैन क्रिएट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ. Look at the sentence I have just written. It is a very similar sentence. Despite all facts for option B, or despite all facts supporting option B, he did not choose option B. Similar kind of sentence है. Or he was close, he was not open to option B. यही बनना चाहिए ना कि सारे फैक्ट्स या एविडेंस हैं हमारे ऑप्शन बी के लिए, लेकिन वो ऑप्शन बी को चूज नहीं कर रहा है. मैं ये ऑप्शंस के बी ऑप्शन को नहीं बोल रहा हूँ. ऑप्शन बी में एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा हूँ इस सेंटेंस में. Despite all facts for option B, he did not choose option B, or he was close to option B. He was not open to option B. ऐसा सेंटेंस बनाना गलत हो जाएगा ना जिसमें I am saying that he is open to option B. Despite all facts for option B, he is open to option B. Will not make any sense. क्योंकि फिर उसमें despite का usage गलत हो गया. Why are we using despite then? We should be using that because all facts were supporting option B. He has chosen, or he was open to option B. हाँ बिल्कुल दिया. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो यही हुआ ना कि अदर थिंग्स जिसपे उनका विश्वास है उसके अलावा सारी जो चीजें हो गई वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई.
Other possibilities will also be same. ठीक है? So if you look at the sentence from that point of view, that despite having an evidence, all evidence for supporting alternative hypothesis, ये archaeologist फिर भी उस alternative hypothesis के लिए क्या होंगे? Open नहीं होंगे, तभी उन्होंने despite use किया है. Right? So we have identified our target, then we identified clue, which was abundance of evidence. तो abundance of evidence पे archaeologist को भरोसा करना चाहिए. But यहाँ पे क्योंकि pivot क्या use हुआ है? Despite. That's why हम लोग अपने क्लू के अगेंस्ट में आ जाएंगे. क्लू था एबंडेंस ऑफ एविडेंस, पर क्योंकि डिस्पाइट ऐड है तो हम लोग किस चीज पे जाएंगे कि ये सब होने के बावजूद वो एबंडेंस ऑफ एविडेंस को नहीं मानते हैं. सो दे विल बी डिसमिसिव ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज. So this is a way to go about it. Either you break it down into 3-step approach of identifying target, clue, and pivots, or maybe you can just go with the positive and negative tone of the sentence. कि आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे कुछ अच्छा समझते हैं अदर पॉसिबिलिटीज को कि बुरा समझते हैं. आयुषी इज सेइंग व्हाई नॉट हेजिटेंट. हेजिटेंट भी नेगेटिव टोन में आयुषी, विच इज करेक्ट. कि अगर यहाँ हम नेगेटिव में देखें तो ओनली 2 वर्ड्स आर नेगेटिव, विच इज सी एंड डी, बट वी आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्गर नेगेटिव वर्ड. ये भी एक सिचुएशन आएगी जब आपको डिसाइड करना होगा कि अमंग्स 2 नेगेटिव ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू यू, आप उसमें से क्या चूज करना चाहते हैं. तो सारे एबेंडेंस सपोर्ट कर रहे हैं. द आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक अदर पॉसिबिलिटीज को लेके क्या होंगे? हेजिटेंट क्या है? डिसमिसिव ही होंगे ना, क्योंकि एबेंडेंस ऑफ सपोर्ट के बावजूद वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं. तो वो क्या है? डिसमिसिव है. राइट? क्लोज और ओपन की तरह देख लो कि अगर मुझे क्लोज से एसोसिएट करना है, दे आर क्लोजिंग, they are not open to other possibilities, so they are dismissive of other possibilities. Right? Let's go to next question to apply the same concept. Look at this one. So you'll be surprised, a lot of times the options are actually not difficult. Your question is very jumbled. The kind of information it is giving is very convoluted, and it takes time to understand what they are saying. So always take your time to understand it. कहाँ पे twist और turns हो रहे हैं, कहाँ pivots use हुए हैं, ये चीज़ हमेशा आप watch करना. A staunch advocate of impartiality in grading, the professor ensured that he assessed his student using. This is pretty simple and straightforward, right? The target is professor, and the clue which we have been given is that he is impartial in his approach, and there is no opposite direction pivot that I can see. Right? If the same sentence would have been starting with despite, right? अगर यही sentence despite से चालू हो रहा होता तो इस sentence में पूरा meaning change हो जाता. Despite a staunch advocate of impartiality in grading, जो प्रोफेसर है उसने कुछ bias होके काम किया होगा, लेकिन अभी यहाँ पे कोई opposite direction pivot नहीं है, same direction pivots पे हम लोग जा रहे हैं. तो हम क्या उठा सकते हैं? All of you are suggesting E, right? Disinterested process. Disinterested का मतलब not taking sides, not being biased. So a staunch advocate of impartiality in grading, the professor ensured that he assessed his students using dash process. A lot of times, these kind of sentences are made little tricky by adding no or not somewhere. ये लोग क्या करते हैं, कई बार ऑप्शन या ब्लैंक के पहले नो और नॉट लगा देते हैं. तो वैसे तो कहीं पे हमें पिवट दिख ही नहीं रहा होगा सेंटेंस पे, जस्ट पहले नो और नॉट लगाने से क्या हो जाता है कि फिर वहां पे डिसइंटरेस्टेड जैसा वर्ड नहीं आएगा. नॉट के साथ क्या आ जाना चाहिए? नॉट बायस्ड आ जाना चाहिए. तब आपको कैसे ऑप्शंस उठाने पड़ेंगे? नेगेटिव हो जाएंगे. तो कई बार ट्रिक करके दे एक्चुअली पुट नो और नॉट समवेयर इन द सेंटेंस जहाँ पे लोगों की नजर यूजुअली नहीं जाएगी. एंड दिस मेक्स इट ट्रिकी कि आपने बाकी सेंटेंस को तो सही समझा एंड यू मिस रीडिंग द नो एंड नॉट रिटन बिफोर द सेंटेंस, एंड उससे मीनिंग चेंज हो सकता है. राइट? अगर यहीं पे नॉट लिखा होता तो मैं क्या लिखता वहां पे? ही डजंट यूज बायस प्रोसेस, तो वो नॉट का कॉम्बिनेशन नेगेटिव के साथ हो जाता है. लुक एट दिस सेंटेंस एंड टेल मी. यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं दिए हैं, आप लोग मुझे अपने जीआरई के जितने वर्ड्स अभी किए हैं उसमें से टेल मी ऑल द गुड वर्ड्स दैट कैन गो इन दिस कंटेक्स्ट. The latest tech superstar to catch the watchful eye of venture capitalists is known for a carefree approach to business. However, in matters related to programming, she is unmistakably dash almost to a fraud.
So try to go with that particular approach. We are talking about a tech superstar, that is our target. टेक सुपरस्टार की तारीफ हो रही है कि बुराई हो रही है फर्स्ट पार्ट में? Are we appreciating or we criticizing the tech superstar in the first half? However के पहले वाले पार्ट में. So if I see the however के पहले वाला पार्ट, तो उसमें वो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, राइट? उसका केयर फ्री अप्रोच है, यानी केयर फ्री अप्रोच के लिए तो आपको वर्ड्स पता ही है, इंसूसियंस, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वर्ड आएगा ब्लैंक पे. आई एम जस्ट सजेस्टिंग फॉर द फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ उसकी इमेज कैसी बताई जा रही है? दैट शी इज केयर फ्री. सो अ गुड वर्ड फॉर दैट इज इंसूसियंस. सो इंसूसियंस है टू बिजनेस मैटर्स, however they have added, which is opposite direction pivot. तो अब मुझे बहुत चीज़ें इजी हो गई हैं कि अगर उन्होंने however लगा दिया है और उसके पहले insouciance है या नॉन चैलेंट है, तो अब मुझे केयर वाले वर्ड्स लगाने चाहिए. In matters related to programming, she is unmistakably, so as you all have suggested, Samriddhi says she is punctilious almost to a fault, right? Meticulous to a fault, बिल्कुल बोल सकते हैं. रजत देविका says scrupulous, infallible, आयुषी बिल्कुल, nuanced, circumspect, केयर वाले वर्ड्स आ जाएंगे, राइट? जितने भी नॉन चैलेंट और इंसूसियंस के अपोजिट होते हैं उस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे. तो बस आपको यही चीज हर क्वेश्चन में लगा के देखनी है. इसको आप मैथमेटिक्स की तरह ही ट्रीट करो कि ट्राई टू सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पॉजिटिव टोन पे जा रहा है या नेगेटिव टोन पे जा रहा है. मैं यहाँ पे नोट्स पे डालते जा रहा हूँ, चैट पे आपके लिखते जा रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट इज, ठीक है. देन बीच में कोई पिवट तो नहीं आ रहा है, और पिवट आ रहा है तो उससे जो भी पिवट आ रहा है, इफ इट्स अ सेम डायरेक्शन पिवट, देन यू विल गो फॉर व्हाटएवर द फर्स्ट पार्ट इज कन्वेइंग. आप सेम इंफॉर्मेशन पे सेकंड पार्ट पे जाएंगे. अगर पिवट आपका अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, डिस्पाइट ऑल्दो ये सब आ रहे हैं, so first part if it is conveying a negative information, which was the case over here, so the however part pivot will उसके अपोजिट बताएगा, तो केयर वाले वर्ड्स आ जाएंगे, उस नेगेटिव के अपोजिट वर्ड्स आ जाएंगे. Let's look at one more question. This is a question which I think Rajat asked me, I think 1 or 2 days back. Although it was a sentence equivalence question, but I have converted that into text completion question. मैंने इसको text completion में convert कर दिया. I have just put 5 options. आपको पता होगा text completion में 1 blank के लिए 5 options रहते हैं, और sentence equivalence में 1 blank पे 6 options रहते हैं, जिसमें से आपको 2 select करने रहते हैं. तो यहाँ it's a text completion question. So read this. It was a pretty interesting question. That's why I put it over here. So even before going to the option, आप पहले खुद से सोचने की कोशिश करो कि हमें अच्छा पॉजिटिव वर्ड रखना है वहां पे कि नेगेटिव वर्ड रखना है. So only by ignoring decades of mismanagement and inefficiency would investors conclude that a fresh infusion of cash would provide anything other than a dash solution to the company's financial woes. So Samriddhi says negative option should come over there. Devika says it should be fleeting. Diya says it should be fleeting. Rajat already knows the answer. बाकी लोग क्या कहते हैं? तो हम वही डिसाइड करते हैं कि हमारा पहले टारगेट क्या है. सो टारगेट इज इन्वेस्टर्स. उनके बारे में बुराई करी जा रही है. क्लू जो हमारे पास है, क्लू को आइडेंटिफाई करते हैं. तो उनके बारे में क्लूज क्या दिए हैं कि मिसमैनेजमेंट है, इनएफिशिएंट है. तो ये हमें उनके बारे में नेगेटिव बातें बताई जा रही है, ठीक है, कि वो डिकेड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड इनएफिशिएंसी कर रहे हैं इन्वेस्टर्स. और अब जो फ्रेश कैश आ रहा है उनके पास, इन्फ्यूजन ऑफ कैश आ रहा है, उसके बारे में उन्हें क्या लगता होगा? दिस फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैश वुड प्रोवाइड देम अ पॉजिटिव सोल्यूशन और अ नेगेटिव सोल्यूशन. अब इन्होंने बड़ा ट्रिकी कर दिया सेंटेंस को बाय सेइंग दैट इट वुड प्रोवाइड एनीथिंग अदर देन. इस तरीके का बना दिया, इट वुड प्रोवाइड एनीथिंग अदर देन. अक्षत से इस पॉजिटिव आ जाना चाहिए.
अदर देन के बाद पॉजिटिव आएगा कि ये एनीथिंग पॉजिटिव है? आई एम आस्किंग कि ये जो एनीथिंग है आफ्टरवर्ड अक्षत इज सेइंग कि पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए. हिबा सेज टिल इट शुड बी नेगेटिव. समृद्धि सेज अदर के बाद पॉजिटिव आ जाना चाहिए. देखो इन्वेस्टर्स की नजर से आप इस सेंटेंस को देखो, और इन्वेस्टर्स ने मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी करी है बट दे आर इग्नोरिंग इट, राइट? तो उनके हिसाब से ये जो इन्फ्यूजन ऑफ कैश है ये इनके लिए एक सोल्यूशन होना चाहिए. ये इनके लिए एक सोल्यूशन होना चाहिए ना, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि उनके मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी के कारण चीजें खराब हो रही है. उनको मे भी लगता है कि जो प्रॉब्लम है दैट इज बिकॉज वी डू नॉट हैव सफिशिएंट कैश. सो कमिंग ऑफ कैश they'll see at that as a solution. So they'll see that as everything other than what? Other than a negative solution, right? उनके लिए हर चीज पॉजिटिव ही रहेगी ना. इस कैश के इन्फ्यूजन से उनको लगेगा कि ये कैश उनके लिए सब कुछ लाएगा अदर देन अ नेगेटिव समथिंग. इट विल ब्रिंग एवरीथिंग अदर देन नेगेटिव समथिंग. इसको इस तरीके से तोड़ के आप देख लो. Do not go to the options. Just try to understand the sentence. For them, this new infusion of cash will provide them everything, anything, right? This anything will be all positive. Other than dash a solution, the solution will be a negative one, something which they'll not like. That's why they are saying it other than कि ये सब कुछ ले आएगा cash उनके लिए other than कोई और problems, कोई और negative solution. Do you agree on that? या नहीं समझ आया तो आप वापस पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. Do you guys agree that a negative option should come over there? This cash would provide anything other than a negative solution to the company's financial woes. देखो ये ऐसा बोल रहे हैं ना, this will, मैं इसको लिख के आपको बता देता हूँ एक अलग तरीके से. ऐसा कुछ बोलेंगे वो लोग. For investors, this will provide anything other than troubles. कि वो उनको सब कुछ ला के देगा. इन्वेस्टर्स तो देविका इग्नोर ही कर रहे हैं ना इस बात को. ये तो कोई एनालिस्ट ने बोला होगा. कोई एनालिस्ट है जो सिचुएशन को समझ रहा है देविका, उसने ये सेंटेंस रखा है कि ये जो मैनेजमेंट है ये इग्नोर करता है जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ये कोर प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं. कोर प्रॉब्लम्स क्या है? मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी. तो इनको क्या लग रहा है कि और पैसा मिल गया तो सोल्यूशन आ जाएगा. तो और पैसे को दे सी इट एज व्हाट? ये अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, दे these investors they see more money as a solution. So they'll see more money as anything other than what? So other than something negative, other than troubles, other than something. अरे देविका समझ में अभी भी नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हो मुझसे. देखो इन्वेस्टर्स क्यों बोलेंगे अपने लिए सेंटेंस? वो खुद इग्नोरेंट है तो वो एक्नॉलेज करेंगे क्या इस चीज को? They wouldn't write it for themselves, right? Some analyst or outside person in the company, maybe anybody else is writing about the investors. This person himself is not an investor. He's from outside. So he's writing about the situation. That वो core problems को ignore कर रहे हैं. They are thinking कि जो fresh infusion of cash है, this will solve the problems, right? So these investors conclude that a fresh infusion of cash would provide anything other than trouble or a temporary solution to the company's financial woes. इस तरीके का हमें चाहिए. So the right option is fleeting, right दिया. Ignoring decades of management. So fleeting is something momentary. तो वो लोग कभी इस चीज को नहीं मानेंगे कि ये momentary solution है. वो क्या मानेंगे कि this fresh infusion of cash will provide anything, permanent solution ले आएगा या उनकी स्थिति अच्छी कर देगा, other than
that this will bring a temporary solution to company's financial woes, will not agree to it. क्योंकि वो इग्नोर कर रहे हैं ना, जो रियल प्रॉब्लम्स है वो मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है, उसको इग्नोर करते हुए वो इसको सोल्यूशन देख रहे हैं कि कैश लाना इज द सोल्यूशन. So bringing cash is the solution. So according to these guys, investors, this would be everything other than something negative. Other than a trivial solution, फिर भी हिबा solution तो है ना. हम तो कह रहे हैं कि ये solution बड़ा momentary है जो exist ही नहीं करेगा. Trivial is something which will not affect. Trivial is something so small that it will not affect. Samriddhi is asking why not premature. Premature solution भी ऐसा है कि maybe if we work upon it, it can be a good viable solution. A premature one is a solution जो कि है तो premature, लेकिन अगर उस पे काम और किया जाए तो this can become a solution. But if you see, cash infusion has never been a problem, right? The problem has been with mismanagement and inefficiency. If you go with this and you say that cash का जो fresh infusion है, this is a premature solution, it kind of gives it a tone that if it's a premature solution, if we work more upon it, we can actually make it mature, right? We can create a viable solution out of it. जबकि यहाँ स्थिति अलग है, यहाँ तो वो कोर प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, वो किसी और बात को देख रहे हैं. ठीक है, वैसे ये सेंटेंस इक्विवेलेंस का क्वेश्चन था समृद्धि, तो वहाँ पे देखते तो प्री मैच्योर का कोई ऑप्शन नहीं था इसमें. एक और जो एफ ऑप्शन था ना, एफ ऑप्शन यहाँ पे रजत को याद होगा, मोमेंट्री था मेरे ख्याल से. मॉनेटरी था रजत की मोमेंट्री था? मोमेंट्री था, राइट. ठीक है, तो वो पेयर से भी देखोगे ना समृद्धि, तो यहाँ पे दो पेयर बन रहे थे, एक कंप्लीट और टोटल बन रहा था, ए और ई, और फ्लीटिंग और मोमेंट्री बन रहे थे. और प्री मैच्योर और ट्रिवियल के लिए तो पेयर क्रिएट भी नहीं हो रहा था. तो सेंटेंस इक्विवेलेंस में ये चीज और आसान हो जाती है आप लोगों को पकड़ना. ठीक है, कि कंप्लीट सोल्यूशन तो कभी नहीं एग्री करेंगे वो, राइट. एनीथिंग अदर देन कंप्लीट सोल्यूशन में तो इन्वेस्टर्स की नज़र में ये सोल्यूशन खराब हो जाएगा. अब ये थोड़ी सी एक लिस्ट है, ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो ये लिस्ट भी आपके पास रहेगी. ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव, जो मैं आपको पिवट्स बता रहा था ना, कि पिवट्स को देखते हुए हमें पॉजिटिव वर्ड्स उठाने हैं या अपोजिट डायरेक्शन वर्ड्स उठाने हैं, ये उसकी एक लिस्ट है. तो जब भी सेंटेंस में बट, डिस्पाइट, येट, हाउएवर आएगा, तो आप क्या जाओगे, क्लूज के अपोजिट जाओगे. इफ योर क्लू इज समथिंग पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे, उसका अपोजिट उठाओगे, राइट. जब भी बट, डिस्पाइट, हाउएवर, अनलेस, रादर, ऑल्दो, व्हाइल, इस तरह के सेंटेंसेस में पिवट्स अगर यूज हैं, तो आप जो भी क्लू आपने आइडेंटिफाई किया, वो क्लू पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उस क्लू के अपोजिट चले जाओगे. हाँ, कई बार सेंटेंसेस को ये कैसे ट्रिकी कर देते हैं कि सेंटेंस में डबल पिवट्स आ जाते हैं. डबल पिवट्स आ जाते हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. मैं एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ.
So look at this particular question. यहाँ पे जो एक है, जो मैं आपको डबल पिवट वाला सेंटेंस बता रहा था, this one. Although he has a reputation for volubility, others at the party did not find him to be especially dash. So looking at this particular sentence, यहाँ पे आप देखो डबल पिवट यूज हो रहा है. कैसे? The sentence is already started with although. तो उसकी reputation है volubility की. If somebody has reputation of volubility, that means they talk a lot, right? They are always outspoken. They talk a lot. तो अगर मैं although के pivot से जाऊं तो मुझे कैसा blank पे ऑप्शन चाहिए जो although वॉल्यूबिलिटी से अपोजिट हो. वॉल्यूबिलिटी से अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? टेसिटन आ गए, इंट्रोवर्ट हो गया, राइट? एनीथिंग विच इज लेस टॉकेटिव या लेस टॉकेटिव वाले जितने वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे. लेकिन इन्होंने बड़ा ट्रिक करके क्या किया है, इन्होंने एक और पिवट या एक और नेगेशन डाल दिया है आगे, विच इज डिड नॉट. they've introduced cleverly one more pivot जिसने इसके इफेक्ट को नलिफाई कर दिया है. तो अब मुझे स्पेशली के बाद क्या चाहिए वर्ड? अ वर्ड विच इज वेरी सिमिलर टू वॉल्यूबिलिटी. राइट दिया, गैरुलस. इट कुड बी अ गुड वर्ड. ठीक है, और कोई वर्ड याद है आप लोगों को टॉकेटिव के लिए? वर्बोज है, गैरुलस है, लोक्वेशियस रेजर, गुड. ग्रेगेरियस है, पर ग्रेगेरियस अच्छी क्वालिटी होती है शायद. ग्रेगेरियस इज अ गुड क्वालिटी, राइट? इट्स मोर ऑफ पीपल जो दूसरे लोगों से जल्दी मिक्स हो जाते हैं, ग्रुप्स में मिक्स हो जाते हैं, जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं. इट्स अ गुड क्वालिटी. वर्बियाज आयुषी, राइट? प्रोलिक्सिटी भी बोल सकते हैं इसे. ठीक है, तो यहाँ पे दो पिवट्स आ जाने से, दो नेगेटिव पिवट्स आ जाने से उसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो गया. तो यहाँ पे हमने वॉल्यूबिलिटी का अपोजिट नहीं उठाया, हमने वॉल्यूबिलिटी से सिमिलर ऑप्शंस उठाए, उसके सिनोनिम्स उठाने की कोशिश करी, राइट? तो ये इन्होंने भी अपनी एक लिस्ट दी हुई है विच इज वेरी सिमिलर टू द लिस्ट दैट आई हैव शोन टू यू. अब वही लिस्ट फॉलो करना जो मेरी प्रेजेंटेशन पे है, उसमें सेम और अपोजिट डायरेक्शन करके आपको लिस्ट दी हुई है. तो आपको पिवट बस देखना है. अगर आपका पिवट अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो आप क्लूज के अपोजिट जाओगे, बट देन ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट दिस डबल नेगेटिव ऑल्सो. कोई डबल पिवट तो यूज नहीं हो रहा है उस सेंटेंस में. अगर हो रहा है तो अकॉर्डिंगली आपको सिचुएशन को चेंज करना है, राइट? Let's come to our text completion practice sessions now. We'll start with some easy level questions today. So again, all the students who have recently joined the classes and who are not well familiar with all the words and vocabulary, you don't have to worry about it. For now, try to fill in your own set of words. अगर आपको clues में options नहीं पता है, sorry, options में अगर आपको words नहीं पता है, तो आप अपनी पसंद का word वहाँ पे identify करके डालिए. अभी understanding the context is the whole exercise that we are doing. कि आपको कंटेक्स्ट समझ के खुद की चॉइस का एक वर्ड अगर आप फिट कर पा रहे हो विच इज क्लोज टू द ऑप्शंस, दैट इज आल्सो फाइन. इवन इफ यू डू नॉट नो मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, इट्स कंप्लीटली फाइन. अब वहां पे अपना एक फिल इन करने की कोशिश करो खुद का, खुद की पसंद का वर्ड, एंड सी इफ इट इज क्लोज टू द ऑप्शंस गिवन. लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस वन इज स्टार्टिंग विद अ अपोजिट डायरेक्शन पिवट. अच्छा, always remember one thing which I've forgotten to mention. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट आप लोग टाइप मत करो. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ. जब भी ये डिस्पाइट और ऑल्दो वाले सेंटेंस आएंगे ना, वो इस फॉर्म में लिखे होते हैं. डिस्पाइट के बाद एक सेंटेंस लिखा होगा जो मैंने ऐसा डैश कर दिया है, एंड देन कॉमा होगा और उसके बाद एक सेंटेंस क्रिएट होगा, राइट? तो जब भी कॉन्ट्रास्ट होता है ना, वो इस कॉमा के आगे और पीछे वाले सेंटेंस में होता है. जो डिस्पाइट का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है ना, वो कॉमा के पहले वाला जो सेंटेंस है उस पे और कॉमा के बाद वाले सेंटेंस पे कॉन्ट्रास्ट होता है, राइट? कॉमा के पहले वाले सेंटेंस के अंदर ही कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो जाएगा. दैट मीन्स विद इन दिस सेंटेंस जैसे ऑल्दो यूज किया है इन्होंने, तो ये ऑल्दो से लेकर 1989 तक वो एक ही तरीके की बात बोलेगा. इससे अपोजिट कंटेक्स्ट वो कहाँ क्रिएट करेगा? यहाँ पे करेगा, जहाँ पे ये कॉमा के बाद डॉक्टर हु रिटन टू बीबीसी इन 2005, यहाँ से इट विल क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट. So whenever they are using any opposite direction pivot like despite although, always be careful about this. The contrast would always be created after comma, not before comma, right? So although it appeared to be dash after its stagnation and eventual cancellation in 89, so it seemed to be, हमारे पास क्लूज क्या है कि वो बंद होने वाला था, राइट? स्टैग्नेशन और कैंसिलेशन हो रहा था उसका. बाद में क्या हुआ है?
अब ऑल्दो से है तो आगे की बात अपने आप में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर ही रही है। कि डॉक्टर हु बाद में क्या बना, बीबीसी में 2005 में इट बिकेम द लॉन्गेस्ट रनिंग साइंस फिक्शन शो इन द हिस्ट्री। सो हमें अपीयर्ड के बाद वाले ब्लैंक पे क्या चाहिए, वर्ड्स विच आर वेरी मच रिलेटेड टू स्टैग्नेशन एंड इवेंचुअल कैंसलेशन, राइट? So Ayushi is suggesting defunct, Akshat is saying defunct, Samriddhi says moribund, Yashvi says moribund, Dia also says moribund, Rajat says it should be defunct. Okay. So most of these students, they actually get stuck with these two options, and this is how actual examination will trick you. दो बड़े क्लोज वर्ड्स दे देना, देखो मॉरिबंड और डिफंक्ट आप देखोगे तो कई जगहों पे दे आर गिवन एज सिनोनिम्स। ठीक है, मॉरिबंड का मतलब होता है, बस डिफरेंस ये दोनों में, मॉरिबंड इज वर्ड्स ऑफ डाइंग, समथिंग has reached to the stage of verge of dying but not dead, right? Defunct is something that has stopped functioning, dysfunctional हो गई है, या जिसने फंक्शन करना ही बंद कर दिया है, दैट इज अ defunct थिंग। तो अब आपको क्लूज को और अच्छे से देखना है टू आइडेंटिफाई दैट शो पूरी तरीके से बंद हुआ था कि सिर्फ स्टेगनेंट हुआ था। So if I look at my clues, two clues are given to me. एक तो stagnation दिया है. If I just look at what stagnation, it brings me to the option moribund, right? कि अगर stagnation हुआ था शो का, तो moribund state हो गई, right? Moribund is on the verge of dying था. लेकिन if I see that it was actually cancelled in 1989, which means the show stopped going on air. It was eventually cancelled in 89. That means it actually stopped. If it actually stopped, then defunct is a better choice. So looking at those two clues, the combination of stagnation and cancellation can be best conveyed by option defunct. ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना मॉरिबंड क्यों नहीं चूज किया हम लोगों ने? क्योंकि मॉरिबंड बताता कि सिर्फ स्टैग्नेशन हुआ था पर शायद कंप्लीटली शो नहीं रुका था, पर हमें आगे बता ही दिया कि 89 में तो शो बंद ही हो गया था। दैट मीन्स इट इवेंचुअली वो डिफंक्ट हुआ था और उसके बहुत साल बाद 2005 में इट बिकेम द लॉन्गेस्ट रनिंग साइंस फिक्शन शो इन हिस्ट्री। ठीक है, दी अदर वर्ड्स वर एसेंडेंट। एसेंडेंट का मतलब एसेंडिंग ऑर्डर में किसी चीज का होना या किसी चीज का इंक्रीज होते जाना। सेटेड इज अनदर वर्ड फॉर सेशिएट। ठीक है, सेशिएबल या सेशिएट आपने वर्ड सुना होगा या इनसेशिएबल सुना होगा। तो सेशिएट इज टू बी सेटिस्फाइड विद समथिंग। Like there's a term which is often used that human beings by tendency are insatiable, कि हमारी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं, हम कभी satisfied नहीं होते हैं, right? And to be satiated with this particular meal, I'm satiated, my stomach is full, so I'm satisfied with the meal. So sated is word of that. What is unflagging? Unflagging zeal होना. Unflagging is persistent रहना, right there. Unflagging zeal, tireless, persistent, in session. Clear है? सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगेन वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज हमेशा करके देखना, थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। सेंटेंस में किसी की बुराई हो रही है, तारीफ हो रही है, अच्छा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, ये सब आप हमेशा करके देखो, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अब अगेंस्ट चाइना's on environmental protection has become ubiquitous pastime at energy summits, right? So context I can see is negative because China के अगेंस्ट में कुछ बोला जा रहा है, कहाँ पे? जितनी एनर्जी समिट्स हो रही हैं वर्ल्ड में। Ubiquitous is what? Something that is present everywhere is ubiquitous, omnipresent. So they are saying that China के against में environmental protection जो groups हैं, they are saying something against China. Obviously, that something which they are saying is never going to be positive because it is against China. So it is negative. So we should be looking at, we should categorize our options as positive and negative. ठीक है? तो क्या क्या options है? Invilling है हमारे पास, opining है, needling है, fulminating है, lauding है. If I try to categorize them within positive and negative, invilling क्या होता है? What is invilling? Cajoling, यशवी, right? किसी को ल्यूर कर लेना, बिल्कुल रजत। होक्स या कैजोल कर लेना, किसी को पटा के कोई काम करवा लेना या फोर्सफुली करवा लेना, डिसेप्शन से करवा लेना, क्रिस, बिल्कुल ठीक है। अपना काम करने के लिए जो हिंदी में हम साम दाम दम भेद बोलते हैं, विच इज वेरी सिमिलर टू इनवलिंग। तो किसी को ट्रैप करके अपना काम करवा लेना, दैट इज इनवलिंग। So invilling will not make any sense over there. We are not trapping China. We are not coaxing them to do something, right?
Opining is just holding an opinion about something which doesn't make it negative option. We are looking for a negative option. What is needling? Anything needling is that will annoy you. So obviously needling against China's record नहीं होगा, right? ये China के context या China के perception से लिखा हुआ sentence नहीं. Somebody else has written it. So needling will also not go. Fulminating is definitely negative. Lauding is positive, which means to appreciate somebody. So as you guys have already mentioned, it should be fulminating. Fulminating is किसी के लिए गुस्से से भरे कमेंट्स करना या गुस्सा भरा प्रोटेस्ट करना, दैट इज फुलमिनेटिंग. फुलमिनेटिंग टॉक्स, फुलमिनेटिंग कमेंट्स, दे आर फुल ऑफ कंप्लेंट्स एंड एंगर. So fulminating against China's record on environmental has become a ubiquitous pastime at energy summits. So this is happening everywhere around the world. In all energy summits, China के against में बोला जाता है. Let's look at this third last question. We'll do rest of the questions in next session. अगेन हमेशा देखने की कोशिश करना सेंटेंस पढ़ने पे कि कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव हमें दिख रहा है. सो क्वीन के जो ब्रदर हैं लुई एंड रॉबर्ट, उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? Do we have a clue for that? Our targets are Louis and Robert, right? For Louis and Robert, I just have one clue. They are appointed something. Ayushi says it's positive, right? क्योंकि आप usually punish करने के लिए या कुछ गलत करने के लिए appointed word use नहीं करते हैं, right? जब भी आपको appoint किया जाता है तो आपको कोई position दी जाती है, right? So if you have been appointed, this gives a positive tone to the sentence. So nothing bad has happened with them, that is for sure. So all the words which are bad or which will not go in the context, we can remove those words. So let me tell you meaning kya hai in options ke, then you can decide. Proteges are followers. Proteges are followers. किसी के भी कोई protege है, if you follow any spiritual god या इस तरीके के आप कोई स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, गॉडमैन होते हैं, इफ यू फॉलो देम, यू आर डिसाइपल ऑफ देम, यू आर प्रोटेजी ऑफ देम. किसी भी चीज के फॉलोवर को प्रोटेजी कहा जाता है. एंड इट डजंट हैव अ नेगेटिव कंटेक्स्ट ऑल्दो. ठीक है, ये वर्ड नेगेटिव नहीं होता है, ये वर्ड पॉजिटिव ही होता है. बट क्या ये पॉजिटिव है? तो कैन वी यूज प्रोटेजी टू हर स्पाउस? कैन समबडी बी अपॉइंटेड एज प्रोटेजीज? कोई किसी का डिसाइपल बन सकता है क्या? अपॉइंट किया जा सकता है क्या? Because this is something you choose to become, right? Nobody can appoint you कि आप आज से इसके disciple हो गए. Nobody will appoint you as a disciple of someone. You choose to become a disciple of somebody. आप किसी के follower या protege बनना खुद decide करके करते हो, right? So although it's a positive word, but nobody can appoint you in that position. That's why this will not go well in the context. Then we have other words which are vassals, serfs. Serfs होते हैं मजदूर, किसान, राइट? उनके लिए ये वर्ड यूज होता है. तो ऑब्वियसली क्योंकि इसमें नेगेटिव कनोटेशन नहीं है तो हम सर्व्स पे तो नहीं जाएंगे. प्रीकर्सर्स अपॉइंट करेंगे क्या उन्हें? हु आर प्रीकर्सर्स? Precursors are basically within army or any mission. Precursors are those people who are appointed not as the leader of the army, but usually they stay ahead in the mission. वो क्या करते हैं मिशन में आगे आगे चल के क्या होने वाला है उसकी जानकारी अपनी पीछे बटालियन या आर्मी को देते हैं. So precursor is basically indication of something coming up. In general, किसी चीज का indication हो जाना is precursor of that. Just similar to harbinger. क्या आने वाला है उसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन या जानकारी देता जा रहा है, वो प्रीकर्सर हो जाता है. मीनियंस आपके चापलूस फॉलोवर हो जाते हैं, राइट? प्रोटेजीज और मीनियंस में यही डिफरेंस है कि मीनियंस आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूस टाइप के फॉलोवर्स हो जाते हैं, which has a negative meaning. And obviously nobody can appoint you as minion of somebody. You become minion, right, of somebody. And it has a negative connotation, so we will not go with that word. हम पॉजिटिव वर्ड पे जाते हैं जिसमें वासल्स आ सकता है. सो अर्लियर टाइम्स वासल्स यूज्ड टू बी एन अरेंजमेंट. आपको पता होगा अर्लियर टाइम्स में फैमिली फ्यूड्स बहुत होती थी. फैमिली फ्यूड्स यानी राज परिवार में फूट पड़ जाती थी, जिस कारण से फैमिली को अटैक करके ओवरथ्रो कर देती थी किंगडम में जो भी रूल करता था. मर्डर्स हो जाते थे, कॉन्स्पिरेसीज हो जाती थी, कोलैबोरेशन कर देते थे. तो बिकॉज ऑफ दैट अर्लियर टाइम्स में एक अरेंजमेंट आया वासल्स, इन विच इफ यू रिमेन लॉयल टू किंग as a family member, if you remain loyal to the king, they'll give you protection and land in return to that.
आपको लैंड और प्रोटेक्शन मिल जाएगा बदले में. तो दिस इज व्हाट वासल एक अरेंजमेंट होता था. तो दे कैन बी अपॉइंटेड एज वासल्स व्हिच यूज्ड टू बी अ पॉजिटिव एंड गुड अरेंजमेंट. ठीक है. अच्छा, अब मैं वी आर ऑल्दो प्रैक्टिसिंग फ्रॉम जीआरई के जितने ये टेक्स्ट कंप्लीशन क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग मैनहट्टन के मटेरियल से कर रहे हैं. सो बस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैनहट्टन के सेंटेंसेस तो अच्छे हैं which they are putting up over here. They are good to practice. It's just within options. A lot of times I've seen that Manhattan tries to bring obscure vocabulary in the options. Very difficult and unheard words. So a lot of you, despite doing all those 1,100 words, you might come across several words within the options that you are not aware about. Like vassals is one of those terms. In fact, until unless I did not attempt this particular sheet, I wasn't aware of the term vassals. क्योंकि ये टर्म्स अब यूसेज में नहीं रह गई. ये अर्लियर टाइम्स की इंग्लिश की वो टर्म्स हैं. ये अर्लियर टाइम्स के अरेंजमेंट्स होते थे वासल्स जो कि अब एग्जिस्टेंस में रहे नहीं. तो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स ऑप्शंस यूज करता है मैनहट्टन जो कई बार आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में नहीं दिखेंगे. तो डोंट गेट डिस्करेज्ड और डिसहार्टेंड दैट डिस्पाइट डूइंग ऑल दोस वर्ड्स इन वोकैबुलरी आई एम स्टिल सीइंग लॉट ऑफ वर्ड्स व्हिच आई एम नॉट अवेयर अबाउट. ठीक है. आप अभी अपना फोकस एक ही चीज पे रखो, ब्रेकिंग द कंटेक्स्ट. Are you able to put right option of your choice within the blank? ऑप्शंस के अलावा आप अपना वर्ड खुद का वहाँ फिट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप समझ पाए कि वहाँ कुछ पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, इतना समझ के भी आप अभी आगे बढ़ सकते हो. राइट. Rest of the questions I'll take it in next session. We'll continue with the same sheet. On Friday, do not forget we'll be having a reading comprehension class, which again is very important. We'll be discussing the concept and strategy part of it, how to attack those passages, कैसे कम टाइम में सही आंसर्स पे आना है, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी क्या है, रीडिंग की स्टाइल क्या होनी चाहिए. ठीक है. पैसेजेस को डील करने की we'll be talking about all that. So I'll see you guys on Wednesday, in which we'll be continuing with the same sheet. And on Friday, I'll be taking the reading comprehension concept class. Right? Any questions you guys would like to ask? ठीक है. कंक्लूड करते हैं फिर आज का सेशन. I'll see you guys day after tomorrow. Thank you everyone for attending this session.